eigenvalues and eigenvectors of a matrix, and not by traditional method. Again here another numerical approach. Okay, so to find eigenvalue and eigenvectors, we have already studied. The first one was power method. Power method was there. And after that power method, this is now Jacobi method. Okay, now we have to study Jacobi method to find eigenvalues and eigenvectors of a matrix. Okay, so no need to write this. Okay. The method is Jacobi method. Jacobi method to find values and eigenvectors. Okay, so to understand this method, we are taking a problem here, and after that we'll take here a matrix, and we calculate eigenvalues and eigenvectors corresponding to that eigenvalues of the matrix. Okay, by numerical approach. And the numerical approach we use here Jacobi method. Okay, so the question is find eigenvalues and eigenvectors of the matrix A, that is given here as 1 root 2 and 2. One more thing we have to care here, that only you can take a symmetric matrix. Okay, 2 root 2 and 1. For here you can use only symmetric matrix. Okay, so now you can see that this matrix is symmetric or not. If you are taking transpose of this, then you will get the sum matrix. You know that symmetric matrix by definition, symmetric matrix transpose of this matrix A will be equal to this matrix. Now obviously the off diagonal elements, you can see that A12 is equal to A21 and A13 is equal to A31, and again here A23 is equal to A32. Okay, so of course this is a symmetric matrix. So here we can use this Jacobi method to calculate eigenvalues and eigenvectors. So come to solution. Okay, so the first step you have to do here, first of all you have to decide the element that is greater in off diagonal elements. Okay, so obviously the principal diagonal is here, तो प्रिंसिपल डायगोनल के बियॉन्ड जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये 2 है. ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2 है. तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना होता है. तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं.
तो द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल भी कह सकते हैं, द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट is A13 is equal to A31, this is equal to 2 and this is positive also। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पहले देखें है क्या, उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स हम देखते हैं इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कॉमन एलिमेंट्स इन डायगोनल इज A11 is equal to A33 and this is equal to 1। ठीक है, जो सफिक्स आपके रिपीट होते हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये दोनों हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 1 है। तो इसके लिए अब हमारा जो फार्मूला होता है यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं tan थीटा, tan 2 थीटा, ये कैलकुलेट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2A13 अपॉन A11 माइनस A33। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, कब, when A11 इज इक्वल टू A33। ठीक है, अगर जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में A11 और A33 ये दोनों अगर जो बराबर दिख रहे हैं, तब आप tan 2 थीटा की वैल्यू ये लेंगे और एंड tan 2 theta is equal to when A11 is equal to A22। अगर जो ये आपके सामने दिख रहा है तब हमारा होगा 2A12 अपॉन A11 माइनस A22। ठीक है, बाकी के केस की भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये देखिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जब हमारे A11 A33 के बराबर होंगे तो tan 2 थीटा इस तरह से डिफाइन होगा, और जब A11 A22 के बराबर होगा तब tan 2 थीटा इस तरह से डिफाइन होगा। तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने है क्वेश्चन में, वो ये ऊपर वाली है या नीचे वाली, पहले ये देख लिया जाए। तो ऑब्वियसली ये A11 इज इक्वल टू A33, तो हमारी ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो ये वाला हम यूज़ करने वाले हैं। जब इसको हमने यूज़ किया तो क्या हो जाएगा, ये tan 2 थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2A13 अपॉन A11 माइनस A33 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू A13 का एलिमेंट कौन सा है, A13 जरा सा इस मैट्रिक्स में देखिए, A13 क्या है, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 अपॉन A11 माइनस A33। अब दोनों बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है 1 है, इसकी भी वैल्यू 133 की वैल्यू A33 की भी वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 4 अपॉन 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और tan कितने की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, tan कितने की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि थीटा को, दोनों के एंगल्स को कंपेयर करते हैं तो 2 थीटा इज इक्वल टू मिला π/2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, π/4। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी एक इसमें ध्यान में रखना है कि ट्रांसफॉर्म हमारा फार्मूला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे।
और अभी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी हमारा ऐसा कुछ रहेगा कि ये नाउ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं P1 दिस इज इक्वल टू होगा। अब इसमें भी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ ये कॉमन एलिमेंट्स है ये दोनों ये करस्पॉन्डिंग, एक मिनट, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों जगह पहले हम साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन साइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको लिख लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा और ये हो गया साइन माइनस साइन थीटा, ये है माइनस साइन थीटा, और इसके ऑफ डायगोनल मतलब इसके ये तो हमारा जहाँ दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे cos थीटा होगा और यहाँ भी cos थीटा होगा, और उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स ये डायगोनल के एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं ये 1 होंगे और सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। कब? जब व्हेन, यहाँ भी कंडीशन है, व्हेन A11 इज इक्वल टू A33, ऐसा है तब। और अगर जो दूसरा वाला कंडीशन व्हेन, ठीक है, व्हेन A11 इज इक्वल टू A22, जब ऐसी सिचुएशन होगी तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का होगा। P1 इज इक्वल टू हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ, ये हमारा होगा A11 इज इक्वल टू A22। जब ऐसा रहेगा तो A11 इज इक्वल टू A33 है, तो A11 वाला एलिमेंट ये है और A33 वाला एलिमेंट ये है। अब A11 और A22 की बात कर रहे हैं तो ये होगा cos थीटा और यहाँ भी होगा क्या, cos थीटा, और इसके अपोजिट में जो यहाँ पर दिख रहा है ये होगा साइन थीटा और यहाँ होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इस प्रिंसिपल डायगोनल में जो बची हुई जगह है यहाँ होगा 1 और बचे हुए सारे जगह पे क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए जो हमारे पास केस है उस केस के अकॉर्डिंग अगर जो हमें देखा जाए तो हमें ये पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लेना है। तो चलिए पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लेते हैं। तो P1 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा फिर 0 और माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद 1 सॉरी ये 0 था, ये 1 ये 0 और फिर उसके बाद ये हो गया साइन थीटा और फिर ये 0 और ये हो गया cos थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हम लोग पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं कुछ। थीटा की वैल्यू हम लोगों के सामने क्या है, π/4। ये वैल्यू हम इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में रखते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब π/4 की वैल्यू रखे हैं तो ये cos π/4 0 माइनस साइन π/4 and 0 1 0 and this sin π/4 and this is 0 and cos π/4, ठीक है। चलिए वैल्यू को रखते हैं। जब वैल्यू को रखे तो हमें क्या मिल रहा है, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 हो गया, 1/√2, 0 तो 0 है, और माइनस साइन π/4, साइन π/4 की भी वैल्यू वही होती है 1/√2, तो माइनस के साथ है तो इसलिए माइनस 1/√2 एंड ये तो 0 ही है, ये 1 है एंड दिस इज 0,
साइन पाई बाई 4 की वैल्यू फिर से यहाँ पे साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और फिर उसके बाद ये हो गया 0 और फिर 1/√2। ठीक है। अब माइनस साइन थीटा, एक मिनट, ठीक है। अब इस ये तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिला और ये हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे सामने निकलता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में होगी अगर जो, तो क्या था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, मान लो यही ए एक मैट्रिक्स है तो ए और ए का ट्रांसपोज हमेशा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, या इसी को हम दूसरी तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज हमेशा ए इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये डिफिनेशन है और ये हमारा जो मैट्रिक्स हमारे सामने आता है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर जो कंसीडर करेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा इसके इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक है। तो P1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट P1 इन्वर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इसी का ट्रांसपोज 1/√2 और 0 और -1/√2 फिर उसके बाद 0 1 0 और फिर उसके बाद 1/√2 एंड 0 एंड 1/√2। ठीक है। अब ये P1 इनवर्स आपके सामने आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि फर्स्ट ये जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, इस पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। मॉडल मैट्रिक्स आप लोग पढ़े रहे होंगे, ये हमने Q से इंट्रोड्यूस कर दिया, Q1 से। ये क्या हो जाएगा, P1 इनवर्स A इंटू P1। ठीक है। अब ये P1 इनवर्स A P1 को जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो P1 इनवर्स हमारे सामने क्या है, 1/√2 0 1/√2 और फिर ये 0 1 0 -1/√2 एंड 0 एंड 1/√2। ओके। एंड मैट्रिक्स A वाज वी हैव, A मैट्रिक्स जो था हमारा वो क्या था, देखते हैं एक बार, 1/√2 2 √2 3√2 एंड 2√2 1। ठीक है। चलिए लिखते हैं इसे। यह है हमारा मैट्रिक्स 1√2 2, फिर उसके बाद है ये √2 3 √2, फिर 2 √2 1। ये हमारा A मैट्रिक्स था। और P1 मैट्रिक्स क्या था, P1 इनवर्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो P1 से निकाला है, P1 की वैल्यू ये है। ठीक है। उसी का ट्रांसपोज है। ठीक है। उसी का ट्रांसपोज इसके इन्वर्स के बराबर है, तो वहीं से लिख लेते हैं, ये 1/√2 एंड 0 1/√2। ठीक है। और एक मिनट, P इनवर्स, सॉरी ये माइनस साइन के साथ है। ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, 0 1 0 और फिर उसके बाद 1/√2 एंड 0 एंड 1/√2 1। अब जैसा हम एक इनिशियल मैट्रिक्स A हमारे पास था तो जिन स्टेप्स को हम फॉलो किए हैं वही सारे स्टेप्स अब हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है। वही सारे स्टेप्स अब हम इस मैट्रिक्स में फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग पहले इसके डायगोनल्स को हम लोग देखते हैं क्या है डायगोनल, इसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या है, 3 3 -1। ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हम लोगों के सामने हैं। अब पहला काम क्या करना था, लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लेने थे। तो लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स
आर क्या क्या है, A12, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये 2 ही है, 2 0 0, हाफ डायगोनल के एलिमेंट्स तो यही हैं, तो एक ही नॉन ज़ीरो है और वही बड़ा है। A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स अगर जो देखा जाए तो डायगोनल एलिमेंट्स, या लिख लीजिए इन डायगोनल एलिमेंट्स देखा जाए तो कौन सा है, A11 इज इक्वल टू A22। अब ये दूसरा वाला कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला कंडीशन जो फॉलो होगा, मतलब दूसरा ये tan 2 थीटा हम लोग वहाँ इंट्रोड्यूस किए थे ना, पहला ये काम करने के बाद हम लोग क्या किए थे कि tan 2 थीटा इंट्रोड्यूस किए थे। अब ये दूसरा वाला लेने वाले हैं, ठीक है, ये वाला। तो क्या है, कुछ और अंतर नहीं है, बस नीचे तो जो बराबर थे वो ऐसे ही रहेंगे, वो हमेशा ही आपका जो आपने बताया वो हमेशा ही 0 हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। और पाई बाई 4 ही आएगी थीटा की वैल्यू यहाँ भी। चलिए करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसे फुल प्रोसेस तो पूरा ही करना है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला रखा हमने 2A12 अपॉन A11 माइनस A22, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 2 इंटू, वहाँ भी A12 ही बड़ा था, 2 ही था इसकी वैल्यू, यहाँ भी वही है A11 माइनस A22 अगेन 3, यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 3, दिस इज 0 एंड 4 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू हो गई tan क्या हो गया पाई बाई 2, और फिर यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिली, थीटा इज इक्वल टू मिल गया पाई बाई 4। चलिए फिर उसके बाद हम P2 एक दूसरा नया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नया वाला जो होगा इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, A11 इज इक्वल टू A22, मतलब ये cos थीटा होगा, और कौन सा होगा, ये cos थीटा होगा, और इसके अपोजिट वाले जो एलिमेंट्स होंगे ये होगा साइन थीटा और ये होगा माइनस साइन थीटा, और प्रिंसिपल डायगोनल का वाला तीसरा बचा हुआ एलिमेंट्स 1 होगा, और ये बचे हुए सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। चलिए ये अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो हमारे सामने आया इसमें वैल्यू रखते हैं थीटा की। तो cos पाई बाई 4 एंड माइनस साइन पाई बाई 4 एंड दिस इज 0, साइन पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4 एंड दिस इज 0 एंड अगेन 0 0 1, ठीक है। चलिए वैल्यू को हम रख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, माइनस साइन बाई 4 पाई बाई 4 ये माइनस 1/√2 एंड 0 एंड 1/√2 हो गया, 1/√2 हो गया, और फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ 0 0 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो आपके सामने आया, अब यहाँ से ये भी हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से P2 इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा, लिख देते हैं, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये P2 का ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल टू P2 का ट्रांसपोज जब लिए 1/√2 एंड माइनस 1/√2 एंड दिस इज 0 एंड 1/√2 1/√2 एंड क्या ये सही चल रहा है, हाँ ठीक है, 0 एंड दिस इज 0 0 एंड 1। ये हमारा आ गया ऑर्थोगोनल इसका P2 का इनवर्स। अब फिर मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ Q1 था, यहाँ Q2 कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो P2 इनवर्स इंटू Q1, अब वहाँ पर मैट्रिक्स A लिया था हमने, अब यहाँ मैट्रिक्स A की जगह हम लोग जिस पर प्रोसीड कर रहे हैं उसको लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग Q1 मैट्रिक्स को लेके प्रोसीड किए हैं, ये Q1 मैट्रिक्स में सारा कैलकुलेशन अब हम लोग आगे सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो Q1 को लेंगे और फिर उसके बाद P2। चलिए P2 इनवर्स क्या है, 1/√2 1/√2
रूट टू एंड दिस इज 0, माइनस 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू एंड दिस इज 0 एंड अगेन 0 0 1। चलिए, और उसके बाद क्यू क्या था हम लोगों का? क्यू था हम लोगों का जो फाइनली आया था क्यू, वो आया था अभी जो आप लोगों ने बताया 320 और 230 और 0 0 माइनस 1, यही था ना? ज़रा सा देख लेते हैं एक बार। हाँ यही है, ठीक है। फिर उसके बाद P2 मैट्रिक्स जो हमारे सामने है, P2 मैट्रिक्स ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। ये P2 इन्वर्स का ट्रांसपोज ही है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो 1 बाई रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू एंड 0, 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू एंड 0 और ये 0 0 1। अब जब ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये अब देखो फाइनली हमारा टारगेट क्या था, इस जो दिया हुआ मैट्रिक्स था हमारा, ये क्वेश्चन में जो मेरा मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को ज़ीरो करना मेरा पर्पस था, ठीक है। तो अगर जो कोई एक मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन मतलब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे ज़ीरो हों, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वही उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े रहे होंगे, जब मैट्रिक्स कभी पढ़े रहे होंगे पहले, तो आप ये जान रहे होंगे। अब ये जो मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स ए से ये मैट्रिक्स हमारा बना है, इस मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि ऑफ डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? ऑफ डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हैं, ठीक है। ऑफ डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमारे सामने दिख रहे हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ही एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे आइगन वैल्यूज़, ठीक है। यही हो जाएगा आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं नाउ आइगन वैल्यूज़। हाँ, अगर जो अभी तुम्हारा ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट बच जाता जो नॉन ज़ीरो होता, तो ये प्रोसेस आप फिर से आगे बढ़ाते, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक आगे करते रहते जब तक कि ऑफ डायगोनल के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो ना हो जाएं। अब चूँकि यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में ऑफ डायगोनल के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो आइगन वैल्यूज़ आर 5 1 एंड -1, ये आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आइगन वैल्यूज़ ये हैं, तो करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? अब करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए आप करिए ये कि P1 और P2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। P1 और P2, P1 क्या था आपका? P1 था आपका ये वाला है मैट्रिक्स P1 का। तो ज़रा सा P1 और P2 आप लोग बताइएगा क्या है? P1 0 1 0 एंड 1 बाई रूट 2 0 1 बाई रूट 2, ये P1 हो गया। और P2 क्या है? P2 है 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 0 1 बाई रूट 2 and 1 by root 2 and 0 and here 0 0 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ रहा है? सर यस सर, कुछ लोग लॉबी में वेट कर रहे हैं, सर उनको ज्वाइन कर दीजिए। तो बहुत टाइम से आए हैं लोग सर, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं बट सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। 6 मिनट बचा है, देखा जाए। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ रहा है? अरे ये दोनों तो ज़ीरो हो गया, 1 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 बाई 2 और अगेन दिस विल बी 0, तो -1 बाई 2 ये हो गया। फिर उसके बाद दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई दिस
and you will get -1/√2. चलो फिर दिस 0 into 1/√2 0, 1 into this -1/2, ठीक है, -1/√2, एक मिनट ये इसमें हो रहा है, ठीक है, 1/√2, ये हो गया 1/√2 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ दिस, देन यू विल गेट दिस इज -1/√2 0 एंड 1/√2, ओके, तो ये हो गया 1/√2 और फिर उसके बाद 0 into 0 0, 1 into 0 0, 0 into 1 0, ये हो गया 0। फिर ये क्या हो गया 1/√2 into 1/√2 1/2 और 0 into 1/√2 0, 1/√2 into 0 0, तो ये हो गया 1/2। फिर उसके बाद 1/√2 into -1/√2 -1/2 हो गया और 0 into this 0 and 0 into this into 0 0, तो -1/2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1/√2 into 0 0, 0 into 0 0 एंड 1/√2 into 1 1/√2 1/√2। ये मैट्रिक्स आपका फाइनली आ गया। अब इस मैट्रिक्स में हमें आइगन वेक्टर्स अगर जो हमें देखने हो तो 5 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमारा हो जाएगा पहला वाला कॉलम और 1 के करेस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा दूसरा वाला कॉलम और -1 के करेस्पॉन्डिंग हमारा तीसरा वाला कॉलम हो जाएगा आइगन वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आई सभी के कि ये जो है आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये हो जाएगा आइगन वेक्टर्स। ठीक है, समझ में